$180 से एक सैलून भी आ गया, राइट, एक घर भी आ गया। जैसे एंड्रयू कहता ना कि if you're a man, it doesn't matter you're sad, you're happy, you still have to work. That's absolutely right. You still have to put 100%. You have to work consistently and you have to make sure you have to have a plan. ये नहीं कि मैं 15 मिलियन कमा लूंगा किस तरीके है ना, जो मेरे को कमा भी सकता बंदा, बट इन डिपेंड्स कि तुम्हारा विजन कहाँ तक है ना। इस कोई भी यहाँ पे आया उसको पता है कि एक फैन होता है बीच में 3-4 दिन का, जो वेटिंग टाइम होता है कि हाँ हमारी फाइल लगने वाली है, हम आइल्स कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो जो स्पैन है ना, उसमें बंदे के पास कुछ नहीं होता कि बच्चे के हाथ से हुनर जरूर पाके भेजी। You are respecting my emotions and you're respecting the fact what I want to say, and I can be transparent about what I really want and how much money I really want, and you can tell me your expertise and show me all the options. Then I would automatically be attracted as a director towards you. भी हम इसमें इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। There are certain jobs जिसमें अगर हम 2-3 साल हार्ड वर्क करें, we can reach to like 45-50 an hour easily. Time is everything. तो वही बात होगी कि स्मार्टली करना, पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा। And I try to tell people, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। Hi everyone, welcome to another episode of the Naveen Chopra Show. Today we have Mr. Kapil Nagpal, who recently started his own business, like his own salon, and he recently bought a house with us as well. He came to Canada as an international student. From there, he has accomplished a lot of things. So Kapil, how are you doing today? Oh, I'm doing great and I'm like overwhelmed with कि मैंने बहुत कुछ accomplish कर लिया. Yeah, I feel like that कि when we see from another perspective कि बहुत कुछ accomplish कर लिया, but then मेरे दिमाग में अभी मेरी range थोड़ी different. Yeah, there is more to come, right? To come, yeah. But if we talk about general dreams जो एक बंदे के होते हैं कि हाँ अपना काम हो, अपना घर हो, है ना? When we come to a different country, it's really hard. So yeah, I think we've done a little bit so far. Yes. It's basically कि जो एक इंसान सोचता है कि यार मैं जब हम एज एन इंटरनेशनल, बिकॉज वी केम ड्यूरिंग द सेम टाइम, राइट, तो हमारी जर्नी वो पीछे से बैक होम से भी कपिल एंड वी लाइक वी हैड द सेम कॉलेज, या एंड तो आई नो हिम फ्रॉम लाइक बैक होम एज वेल, सो आई हैव सीन हिम इवॉल्विंग एज वेल। आई वुड से कि जैसे वो आया था उसके बाद the whole scenario, right? Study से उसके बाद वो and he was putting all things in, like he was all in. वो दिन रात काम कर रहा है सुबह से लेके, मैंने देखा तो आई नो कि कितना तूने हार्ड वर्क करा है, बट लोगों को नहीं पता, राइट? पीपल जस्ट सी यार ये तो आ गया, इसने पीछे से पैसे मंगवा लिया है, XYZ, राइट, कि इसने, बट आई नो बट आई फील कि यार अगर किसी ने मंगवा भी लिया, उसने वो काम कोई अपने ग्रोथ के लिए कर भी लीजिए, दैट्स नॉट बैड, राइट? हर कोई ट्राई करता है कि वो खुद चीजें अकॉम्प्लिश करे, राइट? That's right. I mean, always it's a positive point कि अगर हमारे पास बैक सपोर्ट है ना, पीछे से पैसा है, but it's different and सिनेरियो, राइट? हर किसी का सिनेरियो है। Yeah, my parents sent me with the, I remember $1,280, bro. That's it. That's it. Like, तो वो $1,280 से एक सैलून भी आ गया, राइट, एक घर भी आ गया, अभी और भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी घर बना दिया। इंडिया में भी घर बना दिया, ठीक है। लोग Bro, लगेगा कि मैं flex कर रहा हूँ। No bro, it's fine, it's genuine, right? Like because लोगों को भी सुनना है ना कि क्या चीज़ कैसे चली, क्या जर्नी थी कि I mean, it's all possible, but it just demands a lot of hard work, a lot of consistency, a lot of sleepless nights, and a lot of work, bro. A lot of work. Like you have to just work. Mood जैसा मर्जी हो, जैसे एंड्रयू कहता ना कि if you're a man, it doesn't matter you're sad, you're happy, you still have to work. That's absolutely right. You still have to put 100%. You have to work consistently, and you have to make sure you have to have a plan. Yeah. And honestly, I also write my plans. Like I have already written what I wanna be, and how much money should I have by the time I'm 80? Oh, sorry, 30. 30, yeah, 30. Not 80. What was a cigar? I don't know. तो किसी ने नहीं होता। Yeah. But मैं वैसे कह रहा हूँ कि I think it's always better कि अगर हम थोड़ा प्लान, जैसे एक सिलेबस होता है ना हमारा, है ना, वो प्लान होता है टीचर के पास कि हाँ ये मंथ ये करना है हमने, है ना, तो एंड ऑफ द सेमेस्टर वो हमारा कंप्लीट हो जाता है क्योंकि वो प्लान होता है, है ना। सेम लाइफ में होता है कि अगर हम चीज़ को किसी को लिखते हैं जेन्युइनली, है ना, जो अकम्प्लिश्ड चीज़ें हैं ना, ये नहीं कि मैं 15 मिलियन कमा लूंगा किस तरीके, है ना, जो मेरे को कमा भी सकता बंदा, बट इट डिपेंड्स कि तुम्हारा विजन कहाँ तक है ना। अगर तुम लिख रहे हो कि हाँ यार
तुम एक डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है किसी तरीके, या तुमने अपना स्टोर खोलना उसके लिए 1.5-2 लाख का एक्सपेंस, अगर इफ़ यू आर एबल टू सी द विजन, और अगर तुम उसको लिख रहे हो और तुम उस पर वर्क कर रहे हो कि हाँ यार अगर मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, इतने साइड पे रखूँगा, तो हो जाएगा सब कुछ, है ना. एंड आई थिंक इट्स वेरी पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम आई थिंक एक इंसान को अपने फन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट. ऑलवेज हैव फन टू, like of course work on your dreams, but always बट अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल, राइट? which is a little compromise in my life these days, but I know it's just a phase and we'll get to it as well. नो टोटली. तो ब्रो हम इसको इनिशियली से शुरू करते हैं कि कपिल कनाडा कब आया? Okay. कब आया कनाडा? 20 I came in it was 2018 January intake. ठीक है. हाँ. और उसके अंदर जब 2018 आया तो ये सोच के आया था कि यार सब, क्योंकि मेरे को पता है यू डिड कॉमर्स बैक होम, Yes, yes. राइट? हाँ ना, बिजनेस के अंदर करी है एंड then that's a different thing, right? तो कॉमर्स करिए बैक होम, तो ये एक आइडिया कहाँ से आया कि भाई यार मैंने हेयर स्टाइलिस्ट बनना है? Yeah, so you know there is a time between जब आपकी बैचलर्स या फिनिश हो जाती है, या तुम्हारी जैसे +2 फिनिश हो जाती है, and then you know that you have to apply for Canadian visa or wherever you're going, but mostly Canadian, right? Yeah. तो उसमें एक 3-4 महीने का स्पैन होता है. So that time a person has nothing to do. अगर कोई भी यहाँ पे भी आना की सोच रहा है, या कोई भी यहाँ पे आया, उसको पता है कि एक फ़ैन होता है बीच में 3-4 महीने का, जो वेटिंग टाइम होता है कि हाँ हमारी फाइल लगने वाली है, हम आइल्स कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं. वो जो स्पैन है ना, उसमें बंदे के पास कुछ नहीं होता, तो बंदा कहता है मैंने जिम करनी है, चल जिम तो 1 घंटा होगा, उसके बाद क्या करना पूरा दिन, है ना. लिटरली बंदा फ्री होता. तो मेरी मॉम की एक किट्टी मेंबर थी, तो उसने कहा कि ना मेरे ना रिलेटिव्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो बालों का काम करते हैं ना, बहुत बढ़िया काम है वहाँ पे, बहुत स्कोप है, इट्स वेल रेप्यूटेड, है ना. तो मेरी मम्मा ने कहा कि 48,000 का कोर्स है रुपीज़, है ना. तो कहते कि कर लेना चाहिए. मैं कि यार मम्मा वेस्ट हो गए तो क्या करेंगे ना. तो मेरे को ये भी पता कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे को 50,000 दिए थे, कि जैसे इंस्टॉलमेंट होती है उसकी 3 मंथ्स का कोर्स होता. एंड देन आई जॉइंट एन अकेडमी. बट मैं सच्ची कह रहा हूँ, वो जो नॉलेज है ना, वो आज भी अगर कोई नया बंदा अगर को आता है, मेरे को आज भी वो क्लास याद आ जाती है कि मैं इसको अगर कुछ कर रहा हूँ, या अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अगर कोई ब्लीच एप्लीकेशन कर रहा है जैसे आपको समझ नहीं आएगा, पर जैसे कलर की कोई बात है, कोई कैरेक्टर की बात है, पर मेरे को वो एग्जैक्टली वो क्लास याद आ जाती है कि हाँ यार कि ये चीज़ तब सीखी थी यार. इट्स मीन आई बिलीव इट्स बीन 7 years नाउ कि जब मैंने वो कोर्स करा था. फिर मैं कनाडा आया, then that's how it started. अच्छा, मतलब एक किट्टी में कहीं भी बात को आज लोन बन गया हमसे, है ना? लेकिन मेरी मम्मी की फ्रेंड है, मेरी मम्मी को याद भी नहीं है कि मेरी मम्मी को याद नहीं, पर मेरे को याद है कि मेरी मम्मी ने कहा था, मेरी फ्रेंड है, उसके कह रही है कि बच्चे के हाथ से हुनर जरूर पाके बेची. मेरी मम्मी की फ्रेंड यही कहती थी, इनमें इंदा कर इन्हें तंदूर च रोटियां पानियां सिक ले, कोई नहीं जॉब मिल जाएगी, है ना. मतलब कि वो इंसिस्ट कर रहे थे कि इसका कोई हाथ का हुनर जरूर होना, मतलब स्किल होनी बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक एवरीबडी अग्रीज दीस डेज कि skill is so important. Everywhere you go, skill is very hard to replace. Very hard to replace. If you have a proper hairstylist, you know, अगर कोई प्लम्बर सेट आया हुआ है या कोई इलेक्ट्रिशियन घर पे सेट आया हुआ है, it's really hard कि हम किसी और पे ट्रस्ट करें. यार it's hard job कि इसको रिप्लेस करना, है ना. तो but if you talk about other like simpler jobs, not saying that they are not like well reputed या कुछ उनमें प्रॉब्लम है, but for example a manager or maybe a cashier, है ना, it's really like if you show some attitude, you know, you're fired like 90. No, basically anyone can replace you very easily. और जब आपका स्किल सेट है तो फिर you are bringing something on table. That's the thing, right? That's right. तो कपिल, जब हम एक बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो उसके बाद व्हेन यू सी समवन यार कि ये जॉब करा 9 to 5, तो लगता है कि यार मैं, मतलब आई पर्सनली फील यार मेरे को दोबारा जॉब पे जाना ना बहुत पड़ेगी मुझे, कि मतलब दोबारा जॉब पे जाना पड़ेगी, जॉब करनी पड़े, बिकॉज आई एम इन दैट सिचुएशन कि यार अपना बिजनेस ही बेटर है. ज़रूर कभी किसी पॉइंट पे लगता है कि यार जॉब ही बढ़िया है या बिजनेस. यार जो मैं वही कह रहा था, मैं पहले भी 2 बारी फिनिश करने से पहले ही मैं आउट ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ, बट मैं ये कह रहा था कि कई दिन आते हैं जब हमें लगता है कि भी हम इसमें इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं. देयर आर सर्टेन जॉब्स जिसमें अगर हम 2-3 साल हार्ड वर्क करें, वी कैन रीच टू लाइक 45-50 an hour easily, है ना. There are so many jobs. Yeah. Maybe other people don't have a habit to explore options, but I see Gujarati people, they are like do like very good jobs, है ना. ये highway inspector, ये वो, there are really a ton of jobs which are like very well paid, है ना. Canada में इतनी opportunities हैं.
बट वी आर लाइक स्टक इनटू अ सर्कल कि यहाँ यही जॉब्स हैं जो है ना पीपल। तो मैं ये कह रहा था कि कई दिन ऐसे आता है कि अगर यार हम इतनी मेहनत इसमें कर रहे हैं एंड देन वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्फ, तो कई बारी कोई ऐसा आ जाता है ना जिसको 50-60 मिल जाते हैं, है ना, मैं कहते हैं यार इतनी मेहनत यहाँ करी है, इसकी लाइफ भी बढ़िया है ना। तो कोई दिन ऐसे होता है कि हाँ हमें लगता है कि यार मे बी यू नो दिस लाइफ वाज बेटर, बट अगेन देन वी डू द कैलकुलेशंस आई थिंक एंड और एक और चीज़ थी कि ये कहीं ना कहीं लगता है कि हम जब कनाडा आते हैं तो एक बात बना होता है यार कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बाद इतने घंटे काम करा, काम करके जो जॉब मिल गई कर लिया और वो पढ़ गए, उसका अगली चीज़ होगी पीआर। पीआर के बाद ऐसे होता है कि अब करना क्या है, कितनी बार। और लोग जैसे हम लोगों के उस पर ही चलते रहते हैं रास्ते के अंदर कि यार ये मेरा फ्रेंड टिम हॉर्टन से काम कर रहा था, ये KFC पे काम कर रहा था, ये एक रिटेल स्टोर पे काम कर रहा था, ये यहाँ पे काम कर रहा था, इधर काम कर रहा था, हम वही कंटिन्यू कर लेते हैं कि मतलब। और बात वो गलत नहीं है कि इनिशियली कोई भी जॉब कर लो, बट लोग वापस स्टक ही रह जाते हैं। हाँ, पता क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता स्टार्टिंग में ना। इफ़ आई नो समबडी हु जस्ट लैंडेड, है ना, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, यू नो यू हैव टू फाइंड लाइक अ स्किल्ड जॉब और मे बी फाइंड अ पाथ कि जिसकी तरफ तूने जाना है। डोंट लुक फॉर मनी राइट नाउ, है ना, फाइंड अ पाथ जिसकी तरफ तूने जाना है। पर स्टार्टिंग में ये होता है, बंदे के एक्सपेंस होता है। पर्सन हु जस्ट लैंडेड इज जस्ट विलिंग टू डू एनीथिंग टू यू नो अपने एक्सपेंस सब, है ना। बट आई बिलीव इट्स मतलब कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को, यू नो, कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिशियन बनना है तो स्टार्टिंग से किसी इलेक्ट्रिशियन के अंदर फ्री लग जाओ, है ना, या तुमने प्लम्बर बनना है, क्योंकि दीज आर ऑल्सो वेरी वेल पेड जॉब्स यार, बहुत अमेजिंग इसमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये जो भी स्किल जॉब्स हैं। पर बंदे को ना एक स्टार्टिंग में एक बंदा 21-22 साल का होता है ना, उससे इतना दिमाग फंक्शन नहीं करता कि वो इतनी आगे का सोचे। आगे का तब सोचता है जब वो वर्क परमिट पे आ जाता है, फिर वो पीआर में जॉब स्टॉक हो जाता है, फिर पीआर फिर सोचते हैं कि मैंने करना क्या। बट इन माई केस ऑनेस्टली, नॉट फ्लैक्सिंग अगेन, बट मैंने कभी पीआर का नहीं सोचा कि मेरे को पीआर कैसे मिले, बिकॉज वो मेरे लिए एक साइड सिनेरियो था। मेरे को था कि पीआर तो हो ही जाता बंदा यार, लाइक मेरे को था कि पीआर इज इजी, लाइक पीआर तो हो ही जाता। मेरे दिमाग में ऐसे था कि पीआर तो हो ही जाता है बंदा। मेरे को नहीं पता था इट कैन गेट इजी, but I would say maybe it was manifestation and by here to be here, I think I'll do anything, literally nothing. पता क्या बहुत उसमें क्या हुआ था जब टीआर टू पीआर रिलीज हुआ ना, तो उसमें ना कहा था कि ऐसे May 6 को फाइल लगनी है और क्या चाहिए, एक जॉब लेटर और आइल्स और स्टडी होनी चाहिए कैनेडियन। तो आइल्स की ना साइट ऐसे हैक होगी पूरी। मैं कही यार मैं वो करता हूँ, क्या कर। फिर उनको याद आया कि मैं 1.5 साल पहले ना इंडिया गया था, तो मैंने ना ऐसे ही 4 दिन बाद पेपर दे दिया था आइल्स का। मैं कहा यार मैं यहाँ पे 40 दिन हूँ, मैं ऐसे पेपर दे देता हूँ, 3 दिन क्लास लेके, क्या पता मेरे 777 आ जाए, मेरे को काम आएंगे। पीआर तो 2 साल तो वैलिड है, तो पीआर तो हो ही जाना 2 साल, मतलब तो हो ही जाना है, तो है ना। मैं भी थोड़ी साइड पे कर देते हैं। तो मैं ना हाथ ऐसे काम पे, क्योंकि मैं फाइल चेक कर रहा था, फाइल में मैंने फाइल खोली, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। मैं क्या ये बाइक फाइल था, क्योंकि 1.5-2 साल 2 साल का होता है 3 साल, 3 महीने रह गए फिर यार। 3 मंथ अराउंड 6.5 साल में बैठते, पर वो आइल्स एक्सपायर नहीं हुई थी और वो आइल्स मेरे को भी याद कराया, बिकॉज़ कहाँ से कहाँ चीज़ हो जाएगी जो एक रैंडम चीज़ रही है कि राइट। जस्ट मैं ऐसे गया इंडिया, मतलब इंडिया ऐसे नहीं गया, मतलब कि पहली बार गया था, मैं कि अभी फ्री हूँ तो मैं आइल्स कर लेता हूँ, है ना। तो मैं 4 दिन में आइल्स दी, मैं आई डिडंट स्कोर लाइक अ लॉट, बट देन मिनिमम माय रिक्वायरमेंट वाज 5 bands that time, TR to PR. But if I look now, like it's so hard, bro. Yeah, people are stuck, right? People are stuck. But again, find a way to make money, and then money will get you anything, bro. Whatever you want, like it's so simple. Everybody knows that. Yeah. क्योंकि मेरे को भी याद है हाउ आई वेंट इनटू, मतलब कि मैं रियल एस्टेट में कैसे मैं इंडिया था कोविड के टाइम पे, आई वाज देयर फॉर अ वाइल, राइट, साल के लिए इंडिया था। तो मैंने कहा यार फ्री बैठे हैं इधर भी, कुछ सब इंडिया तो बंद ही था कोविड में, राइट, काफ़ी चीज़ें, तो ऑनलाइन सारा था। तो दैट्स हाउ, बिकॉज मेरे को लगता नहीं कि मैं अगर कनाडा होता तो मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं 6 महीने की पढ़ाई करके, लाइक नॉर्मली टेक्स 5 to 6 months टू गेट अ लाइसेंस, राइट, फिर मैं करके फिर उस चीज़ के साथ कोई ना कोई काम करके आई वुड हैव गॉट इट। तो मेरे को बहुत टाइम लग जाना था उसमें। वही ना ब्रो, टाइम इज एवरीथिंग। तूने टाइम वेस्ट नहीं करा, मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा, है ना। पर मैं कहीं जाने टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब कि सच्ची बिल्कुल कुछ नहीं करते, बस टाइम वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि मैंने ये भी करना है, बट नथिंग हैपेंस।
मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरे को भी एक साल आया था लाइफ में जब मैंने रियलाइज करा कि यार ये तो ऐसे ही चलता रहेगा अगर कुछ ना करा था ना। पर मेरे को थोड़ा कुछ साल पहले लग गया था पता कि यार मैं सच्ची कह रहा हूँ कि कुछ ड्रीम नहीं होने वाला, ऐसे कुछ जैसे मैजिक नहीं होने वाला कि अगर कुछ करना तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरे को पता नहीं किसी ने ऐसे समझ आया था कि यार करना तो खुद ही पड़ेगा। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। इंडिया में तो यार मैं सच्ची बताऊँ, ऐसे एक कुरकुरे का पैकेट भी मंगा होता था ना, तो मेरी डैडी ने साइड पे वो हमारी फैक्ट्री में छोटी सी है, कोई क्रेजी नहीं है, छोटी सी फैक्ट्री है, तो साइड में से बैल थी है ना, मेरे ड्रॉर में पड़ी होती थी बेड की, मैं बैल मारता था ना तो भैया आ जाता था, तो मैं कहता कुरकुरे का पैकेट ला के। और यहाँ पे जब आया मैंने पहले दिन फैक्ट्री की शिफ्ट लगाई, बस में मैं जो रोया ना आपसे आ गया यार, लाइक बड़ी मजा आ रहा है that time we cry, but कोई भी इंसिडेंट हो जब तुम्हारे ब्रेक डाउन हो गया तो लगी थे ना एक बार when you look back at the time you laugh. I think it's always fun to look back at, you know, crazy memories. और वो ही मोमेंट होता है फील कि जब तुम ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि यार नहीं, अब जहाँ आगे हुए हैं ये चीज़ करनी ही करनी है, राइट। हाँ। और एक और प्रॉब्लम है, हम जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जिनको भी मैं जानता हूँ ना, वो ना आई थिंक वो इसलिए भी थोड़ा मैं क्या कहूँ, मैं गलत वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, लेट कहूँगा कि अभी कुछ आई वुड से कि लेड बैक है, लीड बैक कह सकते हैं, यू नेवर नो, राइट। मतलब कि मैं ऐसे थोड़े स्लो अपने जोन में चल रहे हैं, राइट। एवरीवन पता क्या वो ना फिगर आउट नहीं कर पा रहे अभी तक। वो इंडिया भी देखते हैं, वो यहाँ भी देखते हैं ना। आई थिंक कुछ भी करना ना एक डायरेक्शन पकड़ लो, है ना। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम यार ओ सारा टाइम ये कहना कि ओ इंडिया में बहुत बढ़िया था, इंडिया में ऐसा था, इंडिया में वैसा था, हाँ खानी तो रोटी है ना, तो रोटी तो यार इंडिया में सीखी यार, है ना। खानी रोटी, इंडिया रोटी नहीं मिलती थी सबको, है ना। इंडिया भी सबके पास सब कुछ, जो 15-20 लाख लगा के यहाँ आ रहा है तो उसके पास सब कुछ है इंडिया में भी, पर इट्स नॉट, ये कहते हैं ना कि रोटी दी गल है, इट्स नेवर अबाउट रोटी, बट इट्स अबाउट something else. It's about money. It's not really more than a roti, right? It's not. I don't even eat roti, man. I eat rice. तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एक डायरेक्शन पकड़नी है, क्योंकि if you're praising India also have a ton of opportunities. Wherever you go, you will have to work hard to achieve anything. चाहे इंडिया, चाहे जमाइका, चाहे कनाडा, doesn't matter, है ना। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी जाओगे मेहनत करे बगैर कुछ नहीं। मेहनत हर जगह करनी है, चाहे तुम इंडिया हो चाहे तुम कनाडा, से घोड़े की तरह सीधा कर लेना चाहिए, है ना, कि इधर इंडिया इधर कुछ और है ना, इधर कनाडा, चाहे इंडिया की तरफ मुंह कर लो, चाहे कनाडा की तरफ मुंह कर लो, पर हाँ एक चीज़ डिसाइड कर लो कि हाँ भाई तुमने यही रहना है ना। अगर यहाँ रहना तो यहाँ काम करो, अगर इंडिया रहना तो कल फ्लाइट कराओ, इंडिया जाके काम करो। पर यहाँ रह के रोना कि इंडिया बेटर है, इंडिया जाके रोना कि यार कनाडा बेटर था यार, तो इट्स you will end up with nothing. I think it's really important to find a path, write it down and you will get. तो एक चीज़ थी कि ठीक है हमें गोल हो गया कि तूने कहा कि यार ऐसे ना सोचो, अपना पेपर पेन डाउन करो, सारी चीज़ें है ना, पेपर पे लिखो कि ये चीज़ करनी है, मैंने सैलून खोलना है तो मेरे को इतने पैसे चाहिए, इतने मैंने डाउन पेमेंट करनी थी, पर उसकी एग्जीक्यूशन क्या कैसे होती है? एग्जीक्यूशन तेरे केस में कैसे रही एग्जीक्यूशन यार, कि अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करा? मतलब कि it was not crazy hard, bro. Like when you know कि तुम्हें इतना, when you're making a certain amount of money, है ना, then you just separate portions, like okay, you know, separate some money that you need to save. मैंने काम बिना देखे करा। मेरे पापा मेरे को कहते हैं कि ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਸ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰਟ, ਯੂ ਹੈਵ टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। कि मैंने कहती है कि यार मैंने इतने पैसे कमाने या मैंने घर लेना अगले साल, तो घर लेने के लिए मेरे को $1,00,000 चाहिए। जस्ट सेइंग, राइट, मैं कोई बिजनेस ओनर हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, या हेयर स्टाइलिस्ट है कोई बंदा, तो उसको कैसे वो एग्जीक्यूट करना चाहिए और कैसे क्या सिस्टम, हाउ यू डिड इट? की हाँ, सबसे पहले तो बंदे को फील करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ कि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने घर लेने का सोचा है ना, मैंने 6 महीने पहले तो सोचा भी नहीं था, मैंने 3-4 महीने पहले सोचा था, क्योंकि मेरी लैंडलॉर्ड ने मेरे को कहा दिया था कि घर खाली करना पड़ेगा, एंड देन आई डिडंट वांटेड टू गो इनटू अ रेंटिंग सर्कल अगेन, तो आई हैड नो चॉइस, सो आई जस्ट बॉट। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को घर लेना फॉर एग्जाम्पल है, तो पहले वो जो उसकी वाइब है उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब कि पहले
उसको रात को घर के प्राइजेस देखने पड़े, है ना। मैं रात को रोज घर के प्राइजेस देखता था, है ना। फिर मैं कोई भी रियल्टर मेरा क्लाइंट आता था, मैं उसको पूछता था कितने पैसे चाहिए होते हैं, है ना, कि कितने पैसे रखते हैं। 10% में 7-8 लाख, मेरे को सब नॉलेज हो गई थी। 10% में 7-8 लाख तक का घर मिल जाएगा, और अगर 7-8 से ऊपर जाना है, और वो भी सिंगल पर्सन है ना, नॉट एज अ कपल, तो फिर तो 20% तो लाजमी है। और अगर मेरे ख्याल से 7-8 लाख का भी घर है तो भी 20% अब तो क्योंकि इनकम क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो गया ना वो सारी चीजें। तो मेरे को था, फिर मैं सब कुछ डिस्कस करने लग गया सबसे कि इतने पैसे चाहिए। फिर मैं ये भी पूछने लग गया था कि डाउन पेमेंट के अलावा कितने पैसे चाहिए। तो मैंने घर अभी देखने में मतलब क्लोजिंग कॉस्ट हुई कि और भी कोई ऊपर से खर्चा ना हो, बाद में पता चले सरप्राइज है। पर मेरे को पूरी नॉलेज थी कि हाँ अभी ये डाउन पेमेंट है, फिर ये इतनी 2-2.5 हज़ार की फीस है, फिर ये अपना एक मेरे को $300 भी पता है जो बैंक पहली बार काटता है जो रन करने के लिए आपका मॉर्गेज साइट। ठीक है, सो ऑल डिटेल है ना। तो मेरे ख्याल से अगर तुम्हें लगता, अगर तुम ये चीज़ें डिस्कस करके अगर तुम्हें रियली वाइब आ रही है कि हाँ यार कि तुम ये अचीव कर सकते हो, तभी कर पाओगे यार। उस हिसाब से काम करना, सच्ची कह रहा हूँ। पहले डिसाइड कर लो इतने पैसे चाहिए। ये पैसे किसको नहीं पता कैसे सेव करने हैं यार। अगर पता है कि यार इतने पैसे चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से काम करो, लगे रहो। मेहनत तो करनी पड़नी है, मेहनत करना भी तो काम ही है ब्रो, काम ही कर ही जाओ, लगे रहो, बस बात करना। इसमें कोई एग्जीक्यूशन रॉकेट साइंस साइन की जब तुम्हें अंदर से होगा तभी तुम करोगे। कुछ ये भी नहीं कि वो स्टॉक्स भी लगा लिया या कुछ, मेरा दिमाग ही नहीं चलता भाई, ना टाइम है ना मेरा दिमाग इन चीज़ों में चलता। पर मेरे को पता है लोग बट आई नो नथिंग, आई नो शिट अबाउट ऑल दिस। बेसिकली आई फील कि बहुत ज़्यादा टाइम ना सोचने में ही लगा देते हैं। हाँ। और सोचते रहते हैं कि इसको कैसे करना। वही बात होगी कि स्मार्टली करना पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब जो एक नॉर्मल टॉपिक चलती है, एवरीवन सेज दैट कि पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करोगे तो पता चलेगा कि क्या कैसे होगा। हाँ, फिर उसके बाद तुम उसको अच्छे से ईजिली कर लोगे कि यार ये ऐसे करा था, नहीं हुआ तो ऐसे कर ले। फॉर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कल ही कोई हमारी देयर वाज अ मीटिंग एट बाय ब्रोकरेज एंड वो कहते हैं कि यार हमने ना व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट वगैरह सब बनाओ, ये वो XYZ। मैं कहा यार ब्रॉडकास्ट लिस्ट ठीक है बनाओ, कैसे मैंने ऐसे दिवाली की ईद की सेलिब्रेशन। मैंने कहा आई हैव रियलाइज वन थिंग विद दैट ब्रॉडकास्ट लिस्ट, क्योंकि मैंने पहले बैठ के सबकी ऐसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, राइट। उसके अंदर क्या होगा कि डबल ऐड होगी, क्योंकि किसी को तुमने दिवाली भी विश करनी है, किसी को कोई और फेस्टिवल भी, मतलब वो हाउएवर इट इज। फिर मेरे को वो दोबारा डिलीट करके मैंने दोबारा से अब नेम वाइज लिस्ट बनाई कि A से लेके C तक की 256 बंदे हो गए, इसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गए। अब जो मेरा नया बंदा ऐड हो रहा है ना फोन पे, आई ऐड हिम एज जैसे मेरे को सौरभ मिला, सौरभ को मैं करूँगा September 2024, सो दैट आई नो कि जो मेरी अगली ब्रॉडकास्ट लिस्ट है वो डेट के हिसाब से आ रही है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च। सो आई जस्ट सेड कि यार मैंने वो टाइम इतना वेस्ट करा आप करने के लिए कि मतलब ये करके, तो यू गाइस सेव इट। Yes, right. हमें लग रहा है कि वो कम टाइम है। व्हेन यू गो इनटू योर कॉन्टैक्ट्स एंड यू स्टार्ट मेकिंग ब्रॉडकास्ट, तो उन्हें दिमाग खराब हो जाएगा, तो होगा छड्डो इसको क्या करना है करके, राइट। 15-16 कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो बंदे के हो ही जाते हैं कॉन्टैक्ट्स, बिकॉज व्हेन यू लाइक आई एम एन आउटगोइंग पर्सन, यू आर एन आउटगोइंग पर्सन। हमें जो बंदा मिलता है हमारा अपने भी कनेक्शन सा बन जाता है, राइट, एंड देन गेट सेंड इनटू आवर सिस्टम। तो मतलब कि देयर इज ऑलवेज, बट यू हैव टू वर्क हार्ड टू नो कि व्हाट्स अ स्मार्टर वे ऑफ डूइंग इट। या ओनली वे इज वर्क हार्ड। एंड कपिल, आई नो, मतलब कि मैं तो जैसे पर्सनली जानता हूँ, राइट, एंड you have a business, there are a lot of people coming in, you know how to speak to a person कि मतलब आप देख के पता चल जाता है बंदे को विद टाइम कि यार ये इस तरीके से बात कर रहा है, ये कर रहा है। द बेसिक इज कि जब आपने अभी घर लिया, राइट, इवन आई वांट टू नो कि कैसे स्टोरी थी, बिकॉज यू आर टेलिंग मी जो आ रहा है, आप पूछ रहे थे कि यार ऐसे है, ये चीज़ है कि क्या बन रहा है, क्या सिस्टम है, कि कैसे घर के अंदर क्या क्या कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो इतने रियल्टर्स को आपने इंटरव्यू करा होगा, ऑब्वियसली आई नो दैट, राइट। वी हैड अ कॉन्वर्सेशन कपल ऑफ टाइम्स, राइट, कि ऐसे ऐसे, और इंटरव्यू बदली बात तो वो इंटरव्यू नहीं हो गया। तो फिर वो कैसे डिसीजन बना एंड कैसे, मतलब व्हाट वर द मेन कॉम्प्लिकेशंस की यार ये चीज़ कि मेरी ये चीज़ें कवर हो जाए। हाँ, ओके। और कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, मैं ये कहूँगा कि मैं काफ़ी जानों से बात करता था, है ना, बट आई थिंक व्हेन somebody is buying a property, they have a little bit emotion. For me, in my case, I do have a little bit emotion attached to it, है ना, इस property. But there is a little problem with the realtors. They see solely as a business, है ना। वो ऐसे मुँह पे बोल देंगे, हो देखो 12.5 तक का घर चाहिए, इसमें डिटैच नहीं मिलना, इसमें 2 गराज नहीं मिलने, है ना। पर फिर मैं देखो फिर बता रहा हूँ, जब हम रात को लिस्टिंग में देखता था ना, तो पॉसिबिलिटीज दिखती थी मेरे को कि, है ना,
इट में भी थोड़ा पुराना है, क्योंकि मेरे को था थोड़ा पुराना चलेगा, है ना, पर देखने में सुंदर होना चाहिए। मेरे को क्या करना ढांचा पुराना, तो यार घर सुंदर होना चाहिए, घर अंदर से स्ट्रांग हो हो, सुंदर और बड़ा हो। यार। मेरे को छोटे घरों से बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को छोटे कमरों से या जिसमें बस पूरा पूरी बहुत प्रॉब्लम। मेरे को यार बस मिस्टेक बड़ा घर बड़ा होना चाहिए। तो फिर मेरे को था कि एक पर्सनल टच अगर मैं किसी को समझा सकता हूँ ना, दैट्स व्हाई आई स्पोक टू यू कि यार में मैं आई थिंक आई एम प्लानिंग टू बाय हाउस और तेरे साथ बिकॉज आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड मैं तेरे को सीधा सीधा बोल सकता था। बिकॉज जब कोई ऑलरेडी एक रियलिटी एटीट्यूड भी होता है, रियलिटी में एक रियलिटी एटीट्यूड भी होता है, you know, like nice car, and then they think everything is cheap outside, you know. This मैं ये कह रहा कि but in general, you know, there's a thing according to me called realtor attitude, and कि उनको लगता है कि this is cheap, and they talk millions like it's nothing. But when it comes to a buyer, when you're saying okay, इतना तो 1.5 million लगेगा ना, तुमने बोल दिया यार 1.5 million लगेगा, but me as a buyer I want थोड़ा सा personal touch, अगर कोई भी है बिजनेस में, अगर वो अपना पर्सनल टच से एफर्ट डालता है, जैसे तूने डाला है ना, हमने घर देखे, मैं तो कुछ समझाया, फिर तू खुद ही किसी घर में अंदर एंटर होते साल कहता था कि बात चले, मैं क्या हो गया चलो चले क्योंकि तेरे को मेरा टेस्ट पता लग गया था ना कि मेरे को क्या पसंद आ रहा। और सोबर हमें सिर्फ 2 ही घर पसंद आए थे, इतने घर हमने देखे, बट मतलब कितने जिसको पता लग गया था कि ओके दिस इज इट एंड दिस इज इट, है ना। बट जो वाला अमीर हमने लिया, दैट वाज लाइक लिटरली मैं कुछ बोला था, मेरा बाहर निकलने का भी दिल नहीं कर रहा से। एंड वो ना कहानी बहुत डिफरेंट है इधर की, राइट? इट्स गोइंग वेरी बड़ो कहानी बहुत डिफरेंट है। एज ए बिजनेस हम जब बात करते हैं कि एज ए बिजनेस ओनर, तो मतलब कि जैसे एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, तो उसके अंदर अब एक फर्स्ट टाइम होम बाइंग की भी जर्नी साथ में अटैच होगी। तो उसके लिए क्या एडवाइस है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है उसने अपने लिए घर देखना, बिकॉज दे हैव एवरीवन हु स्टार्टेड देयर बिजनेस, दे वो तो खुद ही काम पे सारा टाइम लगा होता है। तो क्या मतलब बेसिकली डिफरेंस क्या लगा? मतलब कि अगर मैं, क्योंकि जैसे तुमने अभी बोला कि हमने 10:30 शोइंग करेंगे ना, बिकॉज of the fact that my business is new and I cannot just come off my work like in this early stage, like I cannot just leave this all like that. So yeah, just take out time, plan things accordingly. Maybe if you're less busy on Thursday morning, just take a day off, you know, half day off, and then do your stuff. ये जो घर देखना है, जो भी करना है, यही था सवाल भी क्या है। हम बस यही है कि अपना टाइम निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये भी चीज़ें ज़रूरी है ना। बिकॉज समटाइम्स जब हम थोड़ा सा लुक बैक करते हैं, एक थोड़ा सा कई बार हमें लगता है कि ओके वी जस्ट वर्किंग ऑन मेकिंग मनी बट वी नॉट एक्चुअली एंजॉयिंग इट। तो फिर थोड़ा सा हमें थोड़ा सा सेपरेट करना चाहिए। राइट नाउ मेरा ये बिल्कुल ख़राब है सिस्टम, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क की तरह है, सोशल लाइफ बहुत ख़राब है इस टाइम, बट आई नो दैट दिस इज अ फेस एंड आई विल गेट ओवर इट बिकॉज देयर इज अ लॉट हैपनिंग। मैं अभी मूव इन कर रहा, स्मार्ट आने वाला है, इतनी सेटिंग करने वाली है, ब्रो पूछ मत, छोड़ दे बात, वो पैसे बने रहते हैं फर्नीचर वो महंगा फर्नीचर ही आ गया, एक बढ़िया गाड़ी आ जाए कोई भी। जब मैंने भी अपना पहला घर लिया, राइट, तो जब तुम अपना घर लेते हो ना, तो तुम बहुत इमोशनली अटैच होते हो उस चीज़ से, राइट। एंड कई बारी लोग नहीं समझते वो नहीं समझते। तो जब तुम अटैच होते हो, तुमने एक विजन करी होती है यार ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, या दीज आर द थिंग्स आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन, दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन स्टिल लुक इनटू, राइट। कि कई चीज़ें अभी तेरे को तो डबल कार गैराज चाहिए, बड़ा घर चाहिए, खुला चाहिए, एंड ऑल वो सब कुछ ही कवर कर रहा था उसके अंदर, राइट। तो सो एंड आई वाज लाइक यार कपिल बहुत सैड था। मैंने कहा भाई देख, जो तेरी किस्मत में है ना वो तेरे को मिल जाएगा, राइट। दैट वाज माय वर्डिंग कि तू टेंशन ना ले, जो तेरी किस्मत में है वो तेरे को मिल जाएगा। एंड गेस व्हाट, आफ्टर 5 days 5th डे पे मैंने उस घर के एजेंट को कॉल करा, मैंने कहा व्हाट्स हैपनिंग। कहता कि यार अपना उनकी मॉर्गेज के अंदर इशू आ रहा है एंड इट्स नॉट गोइंग थ्रू। Then no, I'm just gonna book another showing right now and I'm gonna send you an offer like right. And right away as soon as possible, right। उसके साथ के साथ मतलब कि कपिल जीड़ा काम कर रहा है तो छड़ वाला मैं तो नहीं को बोला था कि कितना ओवर प्राइस, because we have to go little over that। मैं कहा तुमने को पता तो 3,000 डाल दे। Yeah, I was like because there was a different scenario in terms that was some marketing thing, because क्योंकि मतलब हमें बहुत ज़्यादा देख के
उसके अंदर ऑफर भी डालनी पड़ी, सारा कुछ करना पड़ा, राइट? एंड कपिल लाइक यार जो होता है ना इसमें किराया पाऊँ उसको क्योंकि मैं तेरा देखे और ये बहुत बट दैट एंड इवन आफ्टर वी सिक्योर्ड द डील आई पुट द फोटो इन एंड ऑल, मेरे को 3-4 मेरे क्लाइंट्स होना है कि आई वांट दिस हाउस, नो कि मतलब कि ये वाले ऐसे का सेम घर मिले तो इस प्राइस से, एंड दैट वन इज नॉट bro, that's a deep. बट ऑफ द डिफरेंट सिनेरियो, राइट? लाइक I show my house to my friends. I show my house to people, and they say it was genuinely a deal because it's on like main area. The जो even वहाँ पे tram भी ट्रैम भी आ रहा है, एंड प्लस इट्स अ गोल्फ कोर्स एरिया, तो थोड़ा सा इट्स अ डिफरेंट वाइब, देन यू गेट द पूल इनसाइड, एवरीथिंग. there's like more than 50 restaurants in like 3 kilometers radius. Like it's amazing. Bro, you name it, that area has it. Like yeah. एंड मिसिसागा के पास हो गए. Sorry. So yeah, it's बस बेसिकली हमारा बहुत कंस्ट्रेंट्स है, लोकेशन की प्रॉब्लम थी, घर खुला होना चाहिए बिकॉज but I know ये blessing है भगवान की है ना, और हमारी देखो आना थाना चीज वो आ गई हमारे हाथ में, राइट? एंड पर हमने एग्जीक्यूशन वाला टॉपिक क्लोज नहीं करा. मैंने बता दिया एग्जीक्यूशन कुछ भी है, मेरी काम करो नजदीक के और पैसे साइड में निकाल दो और बस जो करना कर. एग्जीक्यूशन में ये मतलब है कि मेहनत करो एंड ऑब्वियसली थिंग्स गोना फॉल इन. अगर तुम कोई गलत जगह भी कर रहे हो ना तो पता चल जाएगा कि यार आई नीड टू चेंज समथिंग, राइट? नीड टू चेंज. तेरे को पता मैंने गाड़ी नहीं बढ़िया ली है ना, मतलब कि आई जस्ट हैव कपिल कि यार देखो 1 महीने के अंदर 1.5 महीने का टाइम है, अगर मैं घर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मेरा रेंटल गाड़ी ले लूँगा. रेंटल में क्या भाई, गाड़ी तो तुमने जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक तो गाड़ी नहीं लेगा, जो मर्जी गाड़ी बुक करा दूं. मेरा बहुत ज़्यादा कहता गाड़ी नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आई सी पीपल दे स्पेंड, मे बी इट्स देयर चॉइस, यार choice, but they spend most of their earnings on car. I spend nothing, bro. I give like $400 per my car, है ना? But again, it's बट आई वुड से कि यार अगर अब जाके गाड़ी चेंज भी करता हूँ, राइट? now- तो एटलीस्ट यू नो दैट now it makes sense to me. Yeah. But earlier it didn't make sense. अभी मैं किसको देखता हूँ वो just landed and bought like crazy 70,000-80,000 car. That does not make sense to me, है ना? Bro, क्योंकि मैं उस चीज़ से impress ही नहीं हूँगा. मैं as a person अगर when I know the inside of you, I will not be impressed what car you're bringing, है ना? कि यार तू इतने पैसे कमा रहा है और उसमें से 25-30% तो स्पेंडिंग ऑन योर कार, राइट? Say that मेरे हिसाब से वो मेरे को ऐसे फूल लगने लग जाता बंदा, है ना? When I ask them how much you pay and you know, but when I know that how much estimate you're making, then मेरे को थोड़ा सा मैं impress नहीं होता. Like it's doesn't impress me at all. मेरे को rather मेरा गलती चल रहा था दिमाग की, यार ये सही नहीं जा रहा बंदा, है ना? And I try to tell people, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ज्ञान देने का कोई फ़ायदा नहीं है. मैं किसी को कहना चाहा है कि you know, I think you shouldn't buy this car, है ना? So they get offensive, like they get मेरे में से मेरी मर्जी. I'm like okay, which is right, but Yeah. I was telling you out of concern that you shouldn't be getting this car or you shouldn't be having a car at this moment because you're not making enough money right now. But then people just want to do what they want to do. But that's just a suggestion, like लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं ना, like ये लाएगा. तो उसको बंदा क्या ही करना है यार भाई, मस्टैंग अभी ना ले, आगे जाके कॉर्वेट ले ली, बट वेट करो कॉर्वेट से करेंट यू लाइक स्वाइप. पर वो अपनी जगह उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है कि हमारी एक जिंदगी है, इसमें जी ले, वो कर ले. बट ठीक है, आई थिंक विद टाइम यू लर्न एंड योर थिंकिंग that's right. गेट बिल्कुल ही मतलब. हाँ अभी मैं I think I might change my car now because it will make sense to me now. It's okay. अब बंदा जब इतने तुम कर लेते हैं ना सिस्टम, when you build a business you get your house and then I feel कि if still your finances are in like that condition कि you can afford a car, that you should definitely go with it because you have an asset in place, so you have a business running place. Yeah. तो business ही चल रहा है, asset भी बन गया, अब और asset बनाने हैं, हल्का सा अपने लिए portion बनता करे. It's all about perspective, I think, right? Perspective. And it's about the prioritizing things. Yeah. I don't prioritize having a nice car. I prioritize maybe clothing, maybe you know jewelry or something, but not my car. Which car I just see as a source of travel. मैं अपनी भी जैसे लाइक अभी हमने घर खरीदा, राइट? मैं अपनी सर्विस का भी रिव्यू लेना चाहता हूँ या एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर्स के पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ कि क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है जो एज अ क्लाइंट लगती है. मेरे को है कि क्योंकि एक घर है ना, और घर होता है, मतलब कि कैनेडा में ये सिस्टम है कि घर को ना ऐसे देखते हैं, घर जैसे इंडिया में हम घर की तरह देखते हैं ना कि अगर ये ज़मीन भी है तो यहाँ पे भी हम बैठ सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारा घर होता है ना. कनाडा में ना इन चीज़ों को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स या मनी फ्लो
पर घर को घर वाला जो दर्जा देना चाहिए ना, वो कहना में थोड़ा कम देते हैं लोग, है ना। घर खरीदते हैं, बड़ा बेच दिया, है ना। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ऐसे एक टूल हो गया पैसे का, है ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, which is people have come in part. But for me, when you're a first time home buyer, you're looking for somebody who understands that there is some personal touch involved, there are some emotional feelings involved, and when you know that somebody in front of you, like you, are respecting my emotions and you're respecting the fact what I want to say, and I can be transparent about what I really want and how much money I really want, and you can tell me your expertise and, you know, show me all the options, then I would automatically be attracted as a realtor towards you, because I know that, you know, there's this person who's at least listening to me and understanding the fact that what I'm trying to portray, and then that's why we're here. Yeah. एंड मेरे को याद है कपिल भाई कि यार मेरे को ना सब कही जा रहे हैं कि 12 लाख के अंदर ऐसे घर नहीं मिलेगा, पर यार मैं जो सिग्मा खोलता था मेरे को तो घर नहीं जा रहे हैं, दिखता ही नहीं। मैं कितने दिखते हैं ये देखिए है ना, ये 2 गराज है, ये देख 4 बेसमेंट में है ना। But yeah, I think not just realtor, with any other service, like me as a hairstylist, if I'm respecting my clients, तो you know उसकी जो presence है, उसकी जो जैसे कोई मेरे को कह रहा है कि नो इज गोइंग टू वेडिंग, है ना, अभी मैं उसकी चीज़ को रिस्पेक्ट करके अगर मैं शो कर रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा केयरफुल हूँ आज मैं तेरी सर्विस में, then he is automatically going to be attracted towards me as a hairdresser, because उसको पता है कि यार, you know, this person knows how to handle people, और उसकी रिस्पेक्ट करना, अपनी क्लाइंट की रिस्पेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कोई भी बिजनेस है, आपका है, मेरा है, किसी का भी है, ये जो भाई कैमरा बनाने हैं ना, और ये भी अगर रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे यार कि ये बंदा बहुत है, नेक्स्ट टाइम किसी को। तो आई थिंक, और पूरा सर्विस करने वाला आया था, तो इतना नाइस था ब्रो, लाइक उसने मेरे को, मतलब कि ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव है, बट स्टिल आई टेम्प्ट हिम बिकॉज ही वाज सो नाइस। मैं मतलब कि मैं उसको कहा था, उसको मैंने सवाल पूछ के मैं बोल के क्लास से हो गया ना कि वो ऐसे तो मतलब कि वो उसने मेरे को, मैंने उसके लेंगे नहीं कर दी पूरी क्वेश्चन पूछने की, पर ही वाज नाइस एंड ही वाज थ्राइस ही कांग्रेचुलेटेड मी फॉर माय ओन प्रॉपर्टी, है ना। तो मेरे को लगा कि ओके, ही इज रिस्पेक्टिंग द फैक्ट दैट इट्स माय प्रॉपर्टी एंड ही इज रिस्पेक्टिंग द क्वेश्चन दैट आई एम रेजिंग कंटिन्यूअसली पोकिंग हिम। और ये क्या है, ये पीछे वो मटीरियल बड़ा, वो क्या है ना, कितनी सारी बॉटल्स बड़ी थी उसकी फॉर मेंटेनेंस की, एक चीज पूछी मैंने, और फिर उससे पूल भी थोड़ा सा मैंने वो साफ करके दिखा कैसे होता है कि रोज कैसे लग। He respected everything, and now I know that I'm gonna call him again. Anytime I have a problem, I'm gonna call the same person. But bro, one more instance with my aquarium, I have an aquarium in my house, and I had no clue how to clean the aquarium. I called somebody, and जो बंदा आया, he said he's gonna charge me $125 for cleaning the aquarium. And then there was a giant fish. I posted a story about it. yeah. तो मैंने कहा कि ये ना इसके यहाँ पे ब्रूज हो गया, and ये अपने आप को पोक करी जा रही है ना। तो कहता है शी वो ग्रो हो गई है बहुत ज़्यादा, एंड द टैंक हैज बिकम स्मॉलर फॉर हर टू जस्ट, यू नो, गो 90 डिग्रीज। तो फिर मैं उसको कहा कि तो इसको ले जा, है ना। द पर्सन टोल्ड मी कि अगर मैं इसको लेके जाऊँगा तो मेरे को जाके वापस थर्माकोल का बॉक्स लेके आना पड़ेगा, एंड आई विल चार्ज यू $125 मोर जस्ट टू कम गो। मैं को बोली टेल मी, आई पिक इट अप, just say it. I mean, go pick it up the box, or maybe I'll just bring a new box, but don't charge me $125. He said, I cannot do favors like that. I am going to charge what I'm going to charge, because I had no clue how to get a fish tank, and I don't have the equipment. I had to pay him, but you think I will call him again? I will never call him. I don't even want to see him, because he was so rude, and he wasn't respecting the fact. उसको पता था कि मैं फंसा हुआ इस टाइम, है ना। मैं चाहता तो मछली मर जाती है अगर मैं उसको ना पैसे देता है ना, क्योंकि उसके अमरूज हो गया था, उसको पता था ये फंसा हुआ है, इसको कुछ पता है नहीं, है ना, नई चीज़ है, तो उसने बस फ़ायदा उठाया, चार्ज भी नहीं। बट आई पेड हिम, नो प्रॉब्लम। बट और उसको मैंने कहा कि जो साइड पे ये जो एक्वेरियम में डालने वाले जो बड़ी शीशियाँ, ये क्या है मेरे को बता दे। नाउ दैट यू आर चार्जिंग मी ट्वाइस, कैन आई आस्क यू लाइक एटलीस्ट दिस मच यू एक्सपेक्ट, राइट, कि ये साइड पे जो केमिकल्स पड़े हैं क्या, कैसे यूज़ करने। He said he came here to clean and not guide me on all this. If I need some guidance, I have to go in the shop and buy some stuff, and then he will tell me what all this is. That's actually what happened, bro. So yeah, that's how there's differences between, you know, when you are going back to some business or you're not going back to some business. When some business is expecting कि आपका clientele कैसा, मतलब अपनी clientele को respect कर रहे हैं, उसका पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं,
है ना, मेनली अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड देन द प्राइस विल कम बैक, नो प्रॉब्लम, नो मैटर हाउ मच द कॉम्पिटिशन इज. Just respect your client and give a good service. That's all they want. And don't give a negative energy. Even if you're like really sad, something's really fucked up in your head, always smile, always be nice. Yeah, because अगले को नहीं फील होनी चाहिए कि you had some problem or you had some issues, right? Again, we're man, right? So Yeah. there's nothing we can do about working. We have to work no matter what. पर एक तो आजकल हेयर स्टाइलिस्ट इंडस्ट्री में आया हुआ ना कि एक मैंने रील देखी, वो एक बाल काट रहा है, उसके पीछे वाला बंदा कहता है मैं $20 में काटूंगा, पीछे एक और बंदा लग गया $15 में काटूंगा. Friendly है. अच्छा वो फ्रेंडी है. मेरा दोस्त है. Yeah, because that's what may be happening in the Brampton area. Maybe like people are like, you know, continuously dropping off the prices. But again, if मैं तो कहता हूँ अपने जो तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम $20 में जॉब करते हो तो तुम 20 ही चार्ज करो. अगर तुम्हें लगता है तुम 60 वाली जॉब करते हो तो तुम 60 चार्ज कर सकते हो. There is market for everybody, bro. There's chairs for $20 and then there's chairs for $3,000 too. People, there's market for both chairs. की कुर्सी लेने बैठे हैं 3,000 की कुर्सी लेने, सेम वे ब्रो. अगर तुम्हारा चार्ज 60 है तो तुम अपनी प्राइस पे थोड़ा सा फोकस करो और बी कॉन्फिडेंट दैट यू नो यू हैव वर्कड दिस हार्ड. Yeah, यू कैन नॉट हमारा होना चाहिए. Like yeah. I will never drop my price, honestly. Like no my clients expect me to drop my prices because they just keep saying बढ़ा दोगे, है ना. I cannot not advertise because I know, you know, things are not okay, right? Yeah. बट मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम 20, अगर कोई अपना प्राइस ड्रॉप कर रहा है, 20 कर रहा है चार्ज, इट्स कम्प्लीटली फाइन. मे बी इज गिविंग 20 वाली जॉब, इट्स नो प्रॉब्लम. दिस इज ये जो स्किल्ड वाली इंडस्ट्री है ना, ये कॉम्पिटिटिव लोगों को लगती है पर इतनी है नहीं है. तुम अपने पे काम करो, सब चीज़ें ठीक सब दिया. एंड इवन की जैसे पता ये कहते हैं राइट कि अगर तुमने ऑपरेशन कराना है तो तुम ये थोड़ा दिखा कि जो पार्ट टाइम डॉक्टर है तो जो फुल टाइम अपना काम कर रहा है, ही इज फोकस्ड इनटू इट. सो यू शुड लुक इनटू दैट अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए किसी भी चीज़ से, राइट. बट व्हेन समबडी हु इज अ बिगिनर, है ना, he has to get clients and then it's okay. हाँ ठीक है. it is our yeah, and that's how you grow as well, right? जो आज $15-20 का कर रहा है वो कल को नहीं $20 करेगा, वो कल को 35 40 and 40. when you just degrade your prices as a crazy drop like 20-25 everything or $30 everything, it's really hard to just jump off that much. So you stay around. So I would say be very precise and wise about choosing how much you want to charge for your service. And one piece of advice that you want to give it to the listener, और जो बंदा सोच रहा है कि यार मेरे को अपना काम शुरू करना है, यार क्या चीज़ होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ. और अगर एक पीस ऑफ एडवाइस मैं किसी को देना चाहता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि भाई एक डायरेक्शन बांध लो, पता है कि क्या करना है ज़िंदगी में, उसमें जी जान लगा दो अपनी, है ना. कुछ भी अगर तुम शेफ हो, जस्ट वर्क सो हार्ड, बी द बेस्ट शेफ. इफ यू आर हेयरड्रेसर, वर्क सो हार्ड. बी रियल्टर, वर्क सो हार्ड. जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो, वर्क सो हार्ड. कि कोई कहे कि यार अगर जैसे रियल्टर का दिमाग में आए तो नहीं याद आए, इतना जिन जान से काम करो कि अगर हेयरड्रेसर का याद आए तो कपल याद आ जाए, है ना. ये डायरेक्शन पकड़ के बहुत उसमें लग जाऊंगा. ठीक है, यही मेरी एडवाइस है सबको. और इधर उधर मत देखो और लाइफ को डर मत होने देना, सच्ची कह रहा हूँ. बीच में मर्ज मत कर देना अपनी लाइफ को. मेरे को वर्कआउट करना पसंद है, मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ वर्कआउट कभी कभी. तो जो चीज़ पसंद है वो जरूर पैरेलली अपने साइड में करो, बिकॉज अगेन लाइफ इज यू नॉट गोना लिव हियर फॉरएवर. थोड़ी मजे कर लिया. सो कह रहा है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड गिविंग टाइम टू योरसेल्फ एज वेल. 6 दिन काम करो, एक दिन अपने लिए रखो, या दिन में 2 घंटे अपने लिए रखो. वो ही चीज़ तुम्हें और मोटिवेट करेगी. दैट्स द पॉइंट कि तुम्हें लगेगा कि यार अब मैं अपना सारा कुछ साइड पे, अब ये 2 घंटे सिर्फ मेरे लिए है. और इसको अब मैं अपनी मर्जी से अपने को रिलैक्स करने के लिए Okay. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Thank you. So much